Okay. In the last class, what did we discuss? We discussed various types of plans, right? Remember, Sir. first two types of plans that we discussed do not come under any category of standing or single use plans. Which are those two? Objectives and strategies. Then we discussed that all other types of plans come in one or the other category out of two. One is standing plans. What are standing plans? The plans which are used for a long period of time and which can be used many times. And then there are single use plans which can be used only once. Understanding plans, what all plans we discussed? Policies, then methods, procedure, and rules. And under single use plans, what are the plans that we discussed? Programs and budgets. Budgets. Okay. Now we come to the main topic. What is planning? What do you think is planning? Madhav, Yes, Madhav, sir. what is planning in your opinion? Sir, in my opinion, sir, it's strategizing or organizing your activities in advance. Okay, good. So deciding in advance what we want to do in future, that is basically planning. And knowingly or unknowingly, we plan most of our activities. And when we plan, our chances of success improve, increase. And when we do not plan anything, then our chances of failure increase. For example, if you have to go out to watch a movie with your friends, you decide which movie you have to watch, that is planning. Then you decide the cinema hall where you want to watch it, again planning. Then you decide how will you all reach over there, again part of planning. Then you find out whether on the internet whether the tickets are available or not, and if available, most of the people these days book the tickets pre-hand online, isn't it? Yes, sir. So Yes, sir. all that is planning. The main activity is watching a movie and finding out where all it is playing, finding out whether the tickets are available or not, then booking the tickets. That all is part of planning. And when you plan, the chances that you will be able to watch the movie that you want to with your friends increase. पहले से आपने बुकिंग करा ली है, पता करके कहाँ पर प्ले हो रही है, तो आप देख पाओगे उसे. अगर प्लान नहीं करें तो क्या होगा? सपोज आपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर डिसाइड किया कि एक मूवी देखनी है, ठीक है, और आप हॉल पे सीधे पहुंच गए, आपने पहले चेक ही नहीं किया टिकट्स अवेलेबल हैं या नहीं, ना आपने टिकट्स बुक की, जब चेक नहीं की तो बुक भी नहीं गई ऑब्वियसली. What will happen? What may happen? Sir, we may not get the tickets for the movie we want to watch. Yes, when you reach the hall, you may be surprised or shocked to know that the house is already full. There are no tickets left. So, when we do not plan our activities in this manner, chances of success decline and chances of failure increase. So, planning is very important. We should always plan to some extent before doing any activity, right? So now we come to the definition of planning.
Planning involves determining objectives and the course of action to achieve them. Very simple. हम डिसाइड करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, पर्पस क्या है, जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है. सबसे पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए माइंड में, तभी हमारी एक्टिविटीज मीनिंगफुल होंगी. ठीक है. Once we decide the objectives, then we decide how exactly are we going to achieve that objective or those objectives. What will be the course of action we will take to achieve those objectives? What all we will do to achieve those objectives? This is planning. Clear? Yes, sir. So it is deciding in advance what to do and how to do. प्लानिंग में हम क्या क्या डिसाइड करते हैं? हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज टू बी डन, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, गोल क्या है, काम क्या करना है. देन वी डिसाइड हाउ इट इज टू बी डन. हाउ इट इज टू बी डन मतलब वी आर डिटरमिनिंग द पॉलिसी, द स्ट्रेटजीज, द प्रोग्राम्स, बजट्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड रूल्स. We make all these types of plans. These will determine how we are going to do whatever we are going to do. Then where it is to be done, we decide upon the location, when it is to be done, timing of various activities, and by whom it is to be done. Which employee will do which activity, which employee will do which job, and so on. Is it clear? Yes, sir. So now tell me, what should be the features or characteristics of planning? Sir, sir, it should be not very like superstitious planning. Like I can do 10 days work in a day. Okay. So it should be realistic, you are saying? Yes, sir. Yes, right. What other features do you think planning has? Characteristics of planning or features of planning? Sir, it should use the resources efficiently and should meet the goals. Very good. Anything else? Okay. The 2 points that you said, Madhav, they are what should be the features of a good planning. एक अच्छा प्लान कैसा होना चाहिए. ठीक है. लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली प्लानिंग के अपने आप में क्या फीचर्स हैं. तो प्लानिंग के क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट फीचर, फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. जो आपके सेकंड पॉइंट में भी ये बात थोड़ी कवर हुई, फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग बिगिंस विद डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग में सबसे पहले हम डिसाइड ये करते हैं कि जो हम करने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पर्पस क्या है. एंड देन वी डिसाइड how exactly we are going to achieve those objectives. So the whole focus of planning is on achievement of objectives. Then second feature is planning is primary. What do we mean by primary? Sir, it sees like the primary functions of the organization. Like if I'm manufacturing something, planning will, the primary function of my company will be manufacturing and planning will be related to it. Yes. स्कूल में प्राइमरी क्लासेस होती है ना, कौन सी क्लासेस को प्राइमरी कहते हैं? Sir, 1st to 5th. Yes. So first class onwards, 1st to 5th is primary. क्यों कहते हैं प्राइमरी? Because they are the initial classes, the beginning classes. ठीक है. तो प्राइमरी का मतलब होता है जो शुरू में आता है. ठीक है. तो इसी तरह से मैनेजमेंट के फंक्शंस तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और सभी ऑलमोस्ट साथ साथ चलते रहते हैं. लेकिन अनलेस एंड अनटिल वी डू प्लानिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स. सबसे पहले प्लान करेंगे, उस प्लान के बेसिस पे ही हमारी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग सब कुछ होगा. सो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. We say it is first among equals. First among equals. All functions are equally important, but planning needs to be done first. Means management begins with planning. Clear? Yes. Yes, sir.
नेक्स्ट फीचर वेरी फेमिलियर, परवेसिव। ठीक है, परवेसिव का क्या मतलब होता है? Sir, it is required on all levels. Yes, planning is required in all the levels of management. It is required in all the departments of the organization. It is required in all types of organization, whether it is an army, whether school, restaurant, hotel, trading concern, showroom, factory, everywhere. Organizations of all sizes, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लानिंग चाहिए और बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लानिंग चाहिए। इनफैक्ट जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो उतनी अच्छी प्लानिंग चाहिए। Organizations everywhere in the world, whether it's an organization in Delhi or Mumbai or Tokyo or New York or wheresoever, everywhere planning is required. So planning is pervasive, required everywhere in all the organizations, and not only in organizations. In fact, it is required in our day-to-day lives also, each and every activity. Next feature, planning is continuous. Continuous means it does not end. हमने एक प्लान बनाया तो अब ऐसा नहीं है कि प्लानिंग अब रुक जाएगी और आगे के फंक्शंस होते रहेंगे। जैसे ही हमने एक प्लान बनाया, दो चीजें चलेंगी अब साथ साथ। फर्स्ट, जो प्लान बन चुका है हम देखते रहेंगे कि कहीं एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहे जिसके अकॉर्डिंग उस प्लान को चेंज करने की जरूरत हो। अगर होगी तो हम अपने प्लान को रिवाइज करेंगे। सेकेंड, वी विल स्टार्ट प्लानिंग फॉर अदर एक्टिविटीज। एक एक्टिविटी प्लान हो गई है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी की प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी साथ साथ। पहली एक्टिविटी का जब तक बाकी काम हो रहा है, इंप्लीमेंटेशन हो रही है, साथ साथ नेक्स्ट एक्टिविटी की प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो प्लानिंग नेवर एंड्स, इट कंटिन्यूज। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बोल दिया करो, थोड़ा जल्दी से रिस्पॉन्स दे दिया करो, Okay, sir. अदरवाइज मुझे लगता है कि शायद आवाज नहीं जा रही है और सम अदर प्रॉब्लम इज देयर। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग में फिजिकल वर्क कम होता है, थिंकिंग वर्क ज्यादा होता है। बिकॉज वी हैव टू थिंक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिडिक्ट कि फ्यूचर में किस तरह की कंडीशंस होंगी। फिर हमें डिसाइड करना है फ्यूचर में हम ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम किस किस तरह से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग चाहिए, हमें फोरसाइट चाहिए। फोरसाइट मतलब एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। प्रिडिक्ट द फ्यूचर नॉट इन द सेंस ऑफ भविष्यवाणी, प्रिडिक्ट द फ्यूचर एज इन estimate on the basis of present trends. So foresight is required, very good judgment is required, imagination and creativity is required because we are creating decisions for future. So all these are qualities of the mind, all these are exercises of the brain. So we say planning is a mental exercise which requires a lot of knowledge and intelligence. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next is involves decision making. प्लानिंग में हम कर क्या रहे हैं, फ्यूचर के लिए अभी से डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे ये भी डिसाइड करना है, उन ऑब्जेक्टिव्स को किस किस तरह से अचीव कर सकते हैं, व्हाट कैन बी दी वेरियस ऑल्टरनेटिव वेज, दैट आल्सो वी विल डिसाइड। Then we will decide out of these alternative ways, which way are we going to implement, which is most suitable for us. So all this involves decision making. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next point is futuristic. Why do we say planning is futuristic? So because we are planning for the future only. Yes, absolutely. Because past को तो हम plan कर नहीं सकते, past is already past. प्रेजेंट को भी हम प्लान नहीं कर सकते,
क्योंकि प्रेजेंट में एक ही काम कर सकते हैं, या तो कुछ एक्टिविटी कर लो या आगे की एक्टिविटी को प्लान कर लो. So planning is always done for future. That is why we say planning is futuristic. It involves forecasting and deciding in advance what is to be done, when it is to be done, by whom it is to be done, how it is to be done, where it will be done. So it is futuristic. Are the features of planning clear, everyone? Yes, sir. Good. Yes, sir. Good. Next heading is planning process. What exactly is the process of planning? You tell me, what should be the steps in the planning process? So first we should see what is our main objective or goal. Very good. So then we should see our resources and the time frame. Right. And sir, then we should find the most efficient way to meet those measures. Very good. Saksham, you want to say something about this? No, sir. Okay. So you agree with whatever Madhav said. Very Yes, sir. right. First step is setting objectives. Planning begins with setting objectives. Okay. For example, the objective may be to achieve a 20% increase in sales. Let us say this is our objective of the business. Take any other example of objective. आपकी लाइफ में अभी आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? So study and the study. स्टडी तो ऑब्जेक्टिव नहीं है ना अपने आप में, स्टडी तो प्रोसेस है टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव. So to get good marks in boards. Okay, getting good marks in both. Sir, to gain knowledge. To gain knowledge, very good. To gain knowledge, to get good marks, right? So we'll understand the steps of planning process taking these two examples. One example is to achieve a 20% increase in sales, and the second example is to gain good knowledge and to also to get good marks in the board exams. So second step, objective set हो गए. Now what? Second step is developing planning premises. Economics पढ़ते हो आप? Yes, sir. Economics में आपने law of demand, law of supply पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. जब भी हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में तो उसकी कुछ assumptions होती हैं. Yes, sir. Yes, sir. उन्हीं को कहते हैं premises. ठीक है? जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हम कहते हैं दैट assuming that the income of the consumer is constant, assuming that the tastes and preferences of people are constant, assuming that the prices of other related goods are constant, ठीक है, and other assumptions. So इन assumptions का क्या मतलब है कि अगर ये चीजें होंगी तो ये लॉ अप्लाई होगा, काम करेगा, अदरवाइज हो सकता है ये लॉ काम ना करे. ठीक है, अगर किसी कंज्यूमर्स की इनकम ही बढ़ गई तो हो सकता है प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड बढ़ जाए क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई है. सिमिलरली जब हम कोई ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं तो हमारे प्रेमिसेस क्या है? हमने जो एग्जांपल लिया 20% इंक्रीज इन सेल, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि 20% सेल कब बढ़ सकती है? जब मार्केट में एक्स्ट्रा डिमांड है इतने गुड्स के बिकने की. अदरवाइज क्या यूज है हम अपनी 20% प्रोडक्शन बढ़ा दें और वो गुड्स सेल ही ना हो तो फायदा क्या है? तो पहला हमारा एजम्पशन हुआ इस ऑब्जेक्टिव का दैट देयर इज डिमांड इन मार्केट. ये हम पता करेंगे मार्केट सर्वे के थ्रू. सेकंड एजम्पशन, इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय 20%, अदरवाइज द ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव. ठीक है. थर्ड एजम्पशन, वी हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज to increase the production by 20%. तो ये तीन हमारे हो गए premises. Developing, ये हमारे इस ऑब्जेक्टिव के premises हो गए, assumptions हो गए कि ये assumptions मतलब ये चीजें होंगी तो हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. अगर हमें लगता है इस स्टेज पे कि कोई
प्रेमिसेस ही ऐसे हैं, प्रेमिसेस जैसे हम कहते हैं स्कूल प्रेमिसेस मतलब बाउंड्रीज, स्कूल बाउंड्रीज, तो ऐसे ही प्लान के प्रेमिसेस मतलब प्लान की बाउंड्रीज, अगर इन बाउंड्रीज के अंदर अंदर, इन एजम्पशंस के अंदर अंदर हम रहेंगे तो हम ये प्लान इंप्लीमेंट कर पाएंगे, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर? यस सर। अब आप मुझे Yes, बताओ जो हमारा दूसरा हमने एग्जांपल लिया था, टू गेट लेट अस से 100% मार्क्स और वेरी गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, 100 और नियर 100, उसके लिए हमारे प्रेमिसेस क्या क्या हुए? sir, to remain consistent. वो प्रोसेस होगी, प्रेमिसेस, एजम्पशन कि जो रिक्वायर्ड है, जिसके बिना मतलब जो ये बताता है कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना पॉसिबल है। सर हार्ड वर्क। वेरी गुड। पहली एजम्पशन कि क्या 100 मार्क्स आते हैं किसी के कभी? तो यस आते हैं। आप पिछले सालों के बोर्ड रिजल्ट उठा के देख लो, in almost every subject some students score 100% marks. So yes, it is possible to score 100% marks in every subject. ये हमारा पहला premise हो गया, it is possible. ठीक है, और किस चीज पर बेस्ड है? एविडेंस पे बेस्ड है। सेकंड प्रेमाइस, क्या मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं इतना हार्डवर्क कर सकता हूं या रेगुलरली पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए? इफ योर आंसर इज नो, वहीं पे प्लान खत्म, आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। इफ द आंसर इज यस, एंड आई बिलीव ईच वन ऑफ यू कैन, ईच वन ऑफ यू आर केपेबल ऑफ दिस, सिर्फ कंसिस्टेंटली अगर शुरू से एंड तक पढ़ोगे, रेगुलरली पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे, जो आपको समझाया जा रहा है समझोगे अच्छे से, जो काम दिया जा रहा है करोगे, अपने डाउट्स पूछोगे, तो कोई डिफिकल्ट काम भी नहीं है ये, रेगुलर एफर्ट से अचीव हो सकता है ये। सो ये हमारी सेकंड प्रेमिस हो गया, प्रेमाइस हो गया। सो वी डेवलप प्लानिंग प्रेमिसेस, वी नोट डाउन कि क्या क्या कंडीशंस चाहिए हमें इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, राइट? Yes, sir. Right. Yes. So premises, planning premises are the assumptions made for the successful operation of plan. Then third step, suppose हमने premises भी बना लिए और हमें लग रहा है कि हाँ premises के हिसाब से possible तो है objective को achieve करना। अब अगले step पे बढ़ते हैं, identifying alternatives. What can be the alternative ways in which we can achieve these objectives? Suppose 20% सेल्स इंक्रीज करनी है, तो क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं? Sir, if we want to increase our sales, so we can work on our advertising and marketing. Very good. One way can be more advertising, more attractive advertising and marketing to increase the sales. Another strategy could be to reduce the price so that demand increases, right? Third strategy could be to improve the product, to incorporate some additional features in the product which will attract the consumers. Similarly, in case of second objective that we had taken, marks, good knowledge, उसके लिए क्या क्या alternative हो सकते हैं? One alternative could be that you will rely on self-study and school teaching. Another alternative, let us say, can be you go for tuitions, coaching classes. Okay, these two alternatives, let us say, are there. तो हमने identify कर लिए alternatives. What next? Evaluate the alternatives. अब हम सारे alternatives को evaluate करेंगे. Evaluate करेंगे मतलब judge करेंगे. किस terms में judge करेंगे? Cost की terms में. कि हमने अगर advertising और marketing पे ज्यादा खर्चा किया, कितनी cost बढ़ जाएगी हमारी. ऑन दी अदर हैंड अगर हम प्राइस लो कर देते हैं थोड़ा सा, तो हमारा कितना रेवेन्यू लॉस होगा, वो उसकी कॉस्ट है. ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन करते हैं, कुछ फीचर्स ऐड करते हैं, तो उसमें कितना खर्चा आएगा. इन तीनों की कॉस्ट को हम कंपेयर करेंगे. फिर बेनिफिट्स, तीनों अल्टरनेटिव में क्या लगता है हमें, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग बढ़ाने से कितनी सेल बढ़ जाएगी. अगर प्राइस हम
जितना कम करने की सोच रहे हैं उससे कितनी सेल बढ़ जाएगी। तो सब ऑल्टरनेटिव्स में हम बेनिफिट्स देखेंगे और कॉस्ट और बेनिफिट में डिफरेंस निकाल के एनालाइज करके हम देखेंगे किसमें नेट बेनिफिट ज्यादा है, मतलब कौन से ऑल्टरनेटिव में बेनिफिट्स कॉस्ट से सबसे ज्यादा है, वो हमें ज्यादा सूटेबल लगेगा। फिर हम देखेंगे फीजिबिलिटी, क्या हमारे लिए फीजिबल भी है, क्या एडवर्टाइजिंग पे और खर्चा करना हमारे लिए फीजिबल है। अगर है तो हम इस ऑल्टरनेटिव को कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्या प्राइस को रिड्यूस करना फीजिबल है, अगर प्राइस ऑलरेडी काफी लो रखा हुआ है हमने तो हो सकता है फीजिबल ना हो, और अगर प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज्यादा है तो फीजिबल होगा वो। ठीक है, तो इस तरह से कॉस्ट्स, बेनिफिट्स, feasibility, suitability and consequences of each alternative will be thought of, will be analyzed। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं जो हमारा स्टडी वाला था, मार्क्स वाला। एक ऑल्टरनेटिव था हमारा सेल्फ स्टडी एंड स्कूल टीचिंग पे रिलाई करना है पूरी तरह से, तो देखेंगे उसमें कितनी कॉस्ट इंकर हो रही है, उसमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, क्या मेरे लिए फीजिबल है। आई थिंक सो। ठीक है, नहीं है फिजिबल तो फिर दूसरे ऑल्टरनेटिव का सोचते हैं। सूटेबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेस, फिर दूसरे ऑल्टरनेटिव के बारे में भी यही सब सोचेंगे, उसमें कितनी, उसमें तो और बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी, बेनिफिट शायद कम मिले ज्यादा मिले, आप एनालाइज करोगे उसे। फिजिबल है मतलब आपके पास इतनी फंड्स हैं, इतनी रिसोर्सेज हैं कि आप एक्स्ट्रा कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो और आना जाना वहां पे, ये फिजिबिलिटी में आ जाएगा। सूटेबिलिटी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो इन सब को एनालाइज करके देन यू विल डिसाइड which alternative is most suitable for you and you will choose the best alternative. That is the next step, choosing the best alternative. So best alternative is selected on the basis of requirements of the organization. The best alternative would be that one which is most feasible, profitable, having most positive consequences, least negative consequences. And how do we decide all this? On the basis of mathematical, statistical analysis, on the basis of managers' experience, judgment and intuition. तो इस सब के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कौन सा ऑल्टरनेटिव हमें फाइनली चूज करना है। सपोज सेल्स बढ़ाने के लिए हमने ऑल्टरनेटिव चूज किया कि हम प्राइस 5% से कम कर देंगे। ठीक है, ये वाला ऑल्टरनेटिव हमें सबसे सूटेबल लगा तो हमने वो चूज कर लिया। स्टडी वाले में लेट अस से हमें लगा कि स्कूल वाला ऑल्टरनेटिव बेस्ट है, सेल्फ स्टडी करेंगे और स्कूल टीचिंग पे पूरा अच्छे से ध्यान देंगे, वो हमें बेस्ट लगा, हमने वो चूज कर लिया। ठीक है, वंस वी हैव डिसाइडेड द ऑल्टरनेटिव देन वी प्रिपेयर अ मास्टर प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये अभी तक के जितने स्टेप्स थे ये सारा टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हो रहा है। मास्टर प्लान एक बना लेंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेन क्या क्या हमें करना है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और उस मास्टर प्लान को कम्युनिकेट कर देंगे सभी डिपार्टमेंट्स में, सो दैट द डिपार्टमेंट्स कैन मेक डेरिवेटिव प्लान्स ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन द मास्टर प्लान। यहां तक क्लियर? Yes, sir. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप हो गया ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट, अब बस उसे इंप्लीमेंट कर दो। जो ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है, जो प्लान बना लिया है उसके बेसिस पे, नाउ स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दैट प्लान। द प्लान्स मेड आर कम्युनिकेटेड टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल्सो टू द ऑपरेटिव वर्कर्स। Employees should be made to understand the scope and benefits of plans. Very important. ये नहीं होना चाहिए कि हमने प्लान्स बस बता दिए और चलो जी काम शुरू करो। प्लान्स बताने के बाद पहले हमें फीडबैक लेना चाहिए कि एम्प्लॉइज को समझ में भी आया या नहीं। अगर उन्हें समझ ही नहीं आया, how can they implement those plans? How can the objectives be fulfilled? If employees have any doubts, we should clarify those doubts first, because it is very important that everyone understands the objectives and the plans very clearly. Only then they can make
put in their best efforts to implement those plans. उसके साथ साथ जो प्लान हम सजेस्ट कर रहे हैं उसके क्या बेनिफिट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन को, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे एम्प्लॉइज के लिए, ये भी समझाना जरूरी है, क्योंकि जब वो समझ में आएगा तब उस प्लान पे काम करने की उनकी विलिंगनेस और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और ये स्टेप शुरू होते ही साथ साथ बाकी सारे मैनेजमेंट फंक्शंस भी स्टार्ट हो जाते हैं इसी फंक्शन, इस वाले स्टेप के साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सब एक एक करके इसके इसी प्लान इंप्लीमेंट होने के साथ साथ स्टार्ट हो जाते हैं। लास्ट स्टेप फॉलो अप। फॉलो अप का क्या मतलब कि प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है लेकिन हमने कुछ प्रेमिसेस सेट किए थे सेकंड स्टेप में, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस, तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट पे लगातार नजर रखें, मॉनिटर करते रहें दैट उसमें कहीं इतना चेंज तो नहीं आ गया कि ये प्लान अब काम नहीं करेगा। अगर आ गया है तो हम अपनी प्लानिंग को सूटेबली रिवाइज कर दें, अपने प्लान में चेंजेस कर दें, जिससे कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो सके। ऐसा ना हो कि एनवायरनमेंट में चेंजेस हो गए और हम प्लान, हमने ध्यान ही नहीं दिया, प्लान हम वही पुराना वाला फॉलो करते जा रहे हैं और नए सर्कमस्टांसेस में वो पुराना प्लान फेल हो जाए। Are these steps clear? Yes, sir. Yes, sir. Everyone? ठीक है, very good. So this completes planning process. Now we come to importance of planning or significance of planning. किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस समझनी हो तो उसकी एब्सेंस को विजुअलाइज करो। चाहे किसी चीज की इंपॉर्टेंस समझनी हो, चाहे लाइफ में किसी पर्सन की इंपॉर्टेंस समझनी हो, उसकी एब्सेंस को विजुअलाइज करो कि अगर आपकी लाइफ में वो पर्सन नहीं होता या वो चीज नहीं होती, वो कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो लाइफ कैसी होती। जैसे ही हम ये विजुअलाइज करते हैं हमें बड़े अच्छे से इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है उसकी, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो प्लानिंग अगर नहीं हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या क्या हो सकता है, जब हम ये सोचेंगे we'll understand the importance of planning. Can you tell me what can be the points of importance or significance of planning? Sir, to provide directions. Yes, Saksham. Sir, to provide directions. To provide directions to whom? Sir, to the employees. Okay. What else? Sir, it saves time. Yes, very good. Sir, it avoids wrong use of resources or wasteful use of resources. Very good. Yes. आपने कहा इट सेव्स टाइम, लेकिन प्लानिंग करने में ही टाइम लगता है, तो isn't it a waste of time? सीधे काम करना शुरू कर दो, प्लानिंग करने में टाइम क्यों वेस्ट करना है? Sir, a good analogy for this will be like if I am building a house and I do not plan on it and I get paint first and bricks and cement after it. So sir, I will waste more time. Yes. एक्चुअली प्लानिंग करने पे जो टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, यस, लेकिन अगर अच्छी प्लानिंग हो गई तो वो आगे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे बहुत टाइम बचाता है। तो ओवरऑल प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को मिलाकर टाइम कम लगता है। अगर प्लानिंग ना करें, जैसे हमने मूवी का भी एग्जांपल लिया था, बिना टिकट्स बुक कराए, बिना पता किए कि अवेलेबल है या नहीं पहुंच गए, अब पता चला वहां तो हाउसफुल है, फिर दूसरे हॉल में भागे, पता चला वहां भी हाउसफुल है। तो पहले 5-10 मिनट, 15-20 मिनट लगा लिए होते तो ये अननेसेसरी का आधा 1 घंटा 2 घंटे बच गए होते। ठीक है, एनीथिंग एल्स, एनी अदर सिग्निफिकेंस? Sir, it avoids uncertainty. Yes, very good. Right. So let's discuss these points now. First point, provides directions. किसको डायरेक्शंस देता है प्लानिंग? मैनेजर्स को भी और एम्प्लॉइज को भी। कैसे डायरेक्शंस देता है? सबसे पहली चीज क्या है प्लानिंग में? ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन करना। जब ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे सबको तो पता है कि किस डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है, पर्पस पता है तो हमें डायरेक्शन मिल जाती है कि हम किस लिए काम कर रहे हैं, तो
पता चल जाता है किस तरह से और क्या काम करना है, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर जब हम बताते हैं कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हमने चूज करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं, तो इन सब के थ्रू भी डायरेक्शन मिलती रहती है मैनेजर्स को भी, ऑपरेटिव एम्प्लॉइज को भी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड, एज यू सेड, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क कम हो जाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन, वी हैड डिस्कस्ड। कब क्या चेंज हो जाएगा पता नहीं, लेकिन प्लानिंग में हम पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे और प्रेजेंट ट्रेंड के बेसिस पे फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। जब हम इस तरह से साइंटिफिकली फोरकास्ट करते हैं तो उस प्रिडिक्शन के, उस एस्टिमेट के सच निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारी अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। अनसर्टेनिटी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकती, लेकिन प्लानिंग के थ्रू कम हो सकती है। आप कहीं घर से बाहर निकल रहे हो, निकलने से पहले जनरली हम आसमान की तरफ देखते हैं कि मौसम कैसा है। अगर हमें काले बादल दिख रहे हैं तो हम पहले से अम्ब्रेला लेके निकलते हैं या रेनकोट पहन के रेनकोट साथ में रख के निकलते हैं। अगर हमें लगता है नहीं क्लियर स्काई है, सनी वेदर है, तो हम अम्ब्रेला वगैरह नहीं लेते। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी प्लानिंग है। हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगले कुछ टाइम में, कुछ घंटों में कैसा वेदर होने वाला है, किसके बेसिस पे? पास्ट और प्रेजेंट के बेसिस पे। अगर हम बिना प्लान किए निकल जाएं तो हो सकता है तब चांसेस ज्यादा हैं कि कुछ ऐसा हो जो हमने प्रिडिक्ट क्योंकि किया ही नहीं था, जो कि हमें नुकसान पहुंचाए। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। एनी डाउट Yes, sir. Yes. up to here? Yes, sir. Any doubt up to here? No, sir. No, sir. Okay, so we stop today's discussion over here and we'll continue with the remaining points in the next class. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.